तो मेरा एग्ज़ाम उससे रिलेटेड उसके मैं आपके कंसेप्ट जानना चाहूँगा कि है अमीन है तो उसके कौन सा प्रोटेक्टिव ग्रुप सूटेबल है। ठीक है, अगर नेक्स्ट रिएक्शन कंडीशंस बेसिक हैं या अगले हमने दो स्टेप एसिडिक और बेसिक मीडियम में करने हैं, हाँ तो फिर कौन सा प्रोटेक्टिव लगाना चाहिए अमीन के लिए, हाँ या अल्कोहल के लिए। तो एटलीस्ट कुछ प्रोटेक्टिव ग्रुप्स के नाम आपको बताऊँ। हाँ, अमीन के लिए प्रोटेक्टिव ग्रुप कौन सा यूज़ होगा, अल्कोहल के लिए कौन सा यूज़ होगा, हाँ कार्बोक्सिलिक के लिए कौन सा प्रोटेक्टिव ग्रुप यूज़ होगा। तो रट्टे वट्टे नहीं लगाने मेरे कोर्स में, सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप जो है ना एग्जाम होगा। आप आप नहीं होगा तो सादा तो सवाल होता है, तो एग्जाम इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप लोग सारी क्लासें मेरी लेंगे तो एग्ज़ाम पास करना मसला नहीं होना चाहिए। तो आप लोग शायद मैकेनिज्म देख के परेशान हो गए, इतने सारे मैकेनिज्म है याद करने एग्जाम के लिए, तो सिर्फ आप लोग को रेफरेंस के लिए मोस्ट ऑफ द जो मैकेनिज्म है ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे। ठीक है, अगर आप उन्हें देखें मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म्स आर ऑन द सेम पैटर्न। I was trying to tell them that you don't need to memorize those mechanisms and a lot of things. I'm just gonna take the exam about some simple questions like, for example, what kind of protective groups we need. But if our next step of reaction, we are going to do a reaction in acidic medium, then what kind of protective group will we start? If the next condition involves a metal catalyst, then which type of protective group will be used for alcohol or for carboxylic group? This type of questions. Yeah, at least you should know that for amine there are how many protective groups available. At least you should know 3-4 names of the protective groups. Say for alcohol, say for carboxylic, say for thiol. There are a lot of functional groups, same for ketones. So these type of general questions you should be well aware of. ठीक है, मेरे कोर्स का मकसद ये नहीं कि आप लोगों को रट्टे वट्टे लगवाए हैं, क्योंकि रट्टा तो फिर एग्जाम के अगले दिन भूल जाता है, खाली हो जाता है वरना। तो कॉन्सेप्ट देना कि आप लैब में जो सिंथेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हुए थोड़ा सा ब्रेन यूज करें। नजर आ रहा है ना आपको? ये तो नजर आ रही है ना, थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। Okay, so yesterday we saw how we got some basic concept about the protective groups. So what are the basic requirements for a good protective group? Can somebody tell me? Easy to install. Easy to install, number one. Easy to remove. Should be stable. During the reaction conditions. Orthogonal. Orthogonal. क्या मतलब है orthogonal का? Can somebody tell me? Selectively removed. We have two protecting groups. Yeah. So we can remove one easily while do not disturb the other. Yeah. Okay. And what else? Speaker basically. It must be high. Oh, high. Yeah. It should be high yield. That is very important parameter, because during the installation of a protecting group and the removal of protecting group, if you use the product yield, then it doesn't make sense to do all this effort. So, can somebody tell me a name of few protecting groups for amine?
हो गया, एलो एफो Z प्रोटेक्टिंग ग्रुप या जिसे CPC कहते हैं, और ट्रॉप ट्रॉप पे बहुत काम किया है, therefore he knows what is ट्रॉप. Yesterday we didn't discuss about ट्रॉप, तो वो आगे आएगा. And there are a lot of protecting groups. If you search online, more than 100 protecting groups are available for different functional groups. So usually those people who are working on advanced senses or multi-step senses or natural order senses, total senses, usually they have different types of protecting groups, because the basic requirement for a good protecting group is that reaction should be quantitative, and we don't get the good yield every time, therefore we switch between the protecting groups. Okay. Again, every molecule is different. We are trying to install one protecting group, but it is not giving us a good yield. Then, okay, leave it. Let us try another protecting group here. So, just like a LIGO की तरह different parts हम try कर रहे होते हैं. So, today we will see little bit more in detail alcohol and phenol protection. This one. Yesterday we saw the basic introduction to protecting groups. Yesterday we saw different protecting groups of alcohol as well. Does somebody remember? Yes. What were the protecting groups for alcohols? Different type of Silyl. Mostly कौन सी सिलाल TMS chloride, tips TBDMS और TBDPS chloride. मुश्किल लग रहा है ना, आसान है ये. हाँ TBDMS. आगे क्या है? Cl क्लोराइड. क्या मतलब? ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड. दिस इज अल्कोहल प्रोटेक्टिंग ग्रुप. इसी तरह अगर मैं इधर ये लगा दूं, ये क्या हो जाएगा? TBDPS. PS हो जाएगा ना. फिनाइल सिलाइल, टर्शरी ब्यूटाइल डाई फिनाइल सिलाइल क्लोराइड. और अगर मैं ये टिप्स देखिए, मैं आपको एग्जाम की टिप्स दे रहा हूँ. एटलीस्ट एग्जाम में इस तरह का सवाल बनना चाहिए ना कि TBDPS का स्ट्रक्चर तो बना के दें. इतना तो होना चाहिए ना. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप एग्जाम होगा. रट्टे वट्टे नहीं लगाने मैकेनिज्म्स को इधर उधर. ठीक है, वो जस्ट आपके रेफरेंस के लिए. यू शुड हैव एन आइडिया. मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म्स आर similar, not a big difference. तो ये है ट्राई आइसोप्रोपाइल सिलाइल क्लोराइड. सो हम सारे आज देखते हैं different types of functional groups which are used, different types of protecting groups which are used for alcohol and phenol. So what are alcohols? 9वीं की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. ROH. R can be alkyl chain or aromatic group. So alcohols भी primary, secondary and tertiary. So based on the nature of R, they can be aliphatic, alicyclic or aromatic alcohols. और हर किसी के लिए फिर different types of protective groups हैं. तो ये तो आपका बेसिक हो गया. सो इम्पोर्टेंस क्या है अल्कोहल्स की? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अल्कोहल?
starting material. They are versatile starting material for synthesis for a wide range of organic compounds. And alcohol can be converted to excellent leaving groups. ठीक है, टोसाइलाइट ग्रुप आप लगा लें, दैट इज एन एक्सीलेंट. आप हिलाइट क्यों लगा सकते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. बट टोसाइलाइट जो है क्लीन रिएक्शन देते हैं, वेरी गुड लीविंग ग्रुप्स. अल्कोहल्स कैन बी oxidized into aldehydes and carboxylic acids and ketones into different functional groups easily, and they are also reduction target. During the multi-step organic synthesis or total synthesis, alcohol functionality can be oxidized, or the oxidized product can be reduced into an alcohol. So, पहला प्रोटेक्टिंग ग्रुप TMS, trimethyl silyl group. Mostly it is available in the market as a chloride, TMS chloride, tetramethyl silyl chloride, या ट्रिफ्लेट की शक्ल में मौजूद है. तो both give excellent yield. Usually their yields are quantitative. So these are the conditions. क्या conditions हैं? आपको एक organic solvent चाहिए और एक base चाहिए. Why we need the base in this reaction? Some organic base we have to use it. Why do we need base in this reaction? Because deprotonation of alcohol, it provide basic environment to deprotonate easily. और फिर आपका Cl ही तो निकलेगा ना, HCl को कैप्चर करने के लिए. Therefore we will add 2 equivalents of base, 2 or more equivalents of base. लेकिन वो base न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम ना करेगा. You have to be careful. वो नहीं तो क्या होगा, साइड रिएक्शंस चल पड़ेंगे. So pyridine, triethylamine, diisopropyl ethylamine, lutein, these are different types of organic bases. We use it during the protection sequence. आप सवाल करेंगे कि वो वाला बेस क्यों यूज करेंगे, ये वाला क्यों नहीं करेंगे, ये वाला, डिपेंडिंग ऑन द हीट and the solubility profile of your starting material. So TMS is available either in the form of chloride or triflate, and you can use any base. And some organic solvents like chloroform or DCM में ज़्यादा अच्छी yield आती है. और deprotection you use hydrochloric acid THF and water. It means 37% HCl which is available in the lab is suitable for the deprotection of this protecting group. 1 molar or 2 molar HCl solution is sufficient to get rid of this protecting group, and as a result you get your alcohol back quantitatively. So this is the first protecting group we saw, TMS. This is TBDMS, tertiary butyl dimethyl silyl, ये इतर बन गया तो सिलाइल क्लोराइड आपको यूज या ट्रिपलेट हालत में मिलता है ये मार्केट. ठीक है, both give excellent yield, so you can buy either this one or that one, and you can use any organic base with it. And these are the deprotection conditions. Some acidic boron trifluoride या T-bag fluorinating agent या hydrochloric acid. This is another alcohol protecting group. Tips: triisopropyl silyl ether. It is only available in chloride form. You can use an organic base like DMAP or pyridine or triethylamine या diisopropyl ethylamine. Simple luteins are available in the market. तो कोई सा भी बेस यूज करें, वो आपका HCl कैप्चर कर लेगा and push the equilibrium of reaction towards the product. क्योंकि अगर आप बेस ऑर्गेनिक बेस थोड़ा डालेंगे then what will happen, reaction equilibrium will establish. HCl रिमूव करना जरूरी है. ठीक है, रिएक्शन को फॉरवर्ड पुश करने के लिए अकॉर्डिंग टू ली शार्टियर प्रिंसिपल.
So deproduction conditions, वही एक्वस HCl कोई सा भी सॉल्वेंट यूज कर लें, THF या मेथनॉल. सॉल्वेंट की चॉइस जिसमें आपकी ये प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट डिजॉल्व हो जाए. एंड यू कैन आल्सो यूज टी-बाफ. टी-बाफ क्या है? हाँ, टर्शियरी ब्यूटाइल अमोनियम क्लोराइड. ट्राइब्यूटाइल अमोनियम क्लोराइड. अच्छा, आगे ये क्या है आपका? TBD-PS. ये नाम याद करना बड़ा आसान है. हाँ, अल्कोहल TMS हो गया, TBD-PS हो गया, TBD-MS हो गया, TIPS हो गया. हाँ, there are so many protective groups for alcohol available in the market, and they are mostly available either in the form of chloride or in the form of triplet. So both give us the quantitative yield. So same organic waste use करें और फिर ये जो है it goes away with this T-BAF. So it means it is stable in acidic environment. Then benzyl ether. ये next step चाहे acidic है या basic environment में हो रहा है, this protective group will stay at place. Alcohol से we cannot easily get this protecting group eliminated if the next steps are going to happen either in acidic medium or in basic medium. So the condition which is needed to get rid of this type of protecting group, I mean the benzyl ether type of protecting group, you always need a catalyst with hydrogen. So unless you give this condition, you cannot remove this protecting group. It's very stable and solid protecting group. इसका installation भी tricky है. इसकी installation never give you quantitative yield. 80-90% 80-90% yield आती है. ये है. लेकिन वो जो आपके सिराइल ethers हैं, they easily give you the quantitative yield reaction. आपने वो डाला, mix किया, you get 100% yield. लग रहा है रिमूव होना भी बड़ा. हाँ, उनका रिमूव होना भी आसान है. ठीक है. तो बेंजाइल ईथर, लेकिन इसका फिर ये फायदा है कि आपके जो सबसीक्वेंट स्टेप्स हैं सिंथेसिस के, दे आर नो मैटर आप एसिडिक एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं या बेसिक एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं, इन द नेक्स्ट स्टेप्स आपका अल्कोहल प्रोटेक्टेड है. सिर्फ इसमें फिर ये भी है कि जब तक ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप मौजूद है, आप उसमें से अल्कीन नहीं बना सकते अपने मॉलिक्यूल में. लास्ट स्टेज पे बनाएंगे. ठीक है. अगर if you will study the total synthesis schemes which are being published in Organic Letter or JETS or Angewandeshimi या Nature Communication या Nature Synthesis में आप अगर उनको रीड करेंगे, बस नजर मारना है, रटा नहीं लगाना ना. हमें हर चीज़ को रटा लगाने की आदत है ना. आप वो देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं एक खास सीक्वेंस में यूज हो रहे हैं. दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी. तो वो जो है ना, यू हैव टू यूज द प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स ड्यूरिंग द सिंथेसिस वेरी क्लेवरली. ये ना आप स्टेप्स करते गए, वो पीछे तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप की चॉइस ही गलत थी, 7वें स्टेप के ऊपर जाके समझ आए और यहाँ से तो हम आगे नहीं जा सकते. चलो जी वापस दोबारा से स्टार्ट करो और डिफरेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाओ. तो therefore retrosynthetic analysis is the critical step during the advanced synthesis. Study the scheme very well. Yeah. और वो रेट्रोसिंथेसिस एक दिन में नहीं हो जाती है. हाँ, आपने एक मॉलिक्यूल बनाना तो 3-4 महीने उसकी रेट्रोसिंथेसिस उसके लिए सर डिजाइनिंग से भी पता चल जाएगा कि हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, उस बेसिस पे भी हम कर सकते हैं. फिर डिजाइनिंग इज द बेस्ट. हाँ, डिजाइनिंग. लेकिन देखें, आप अगर एक टोटल सिंथेसिस करनी है तो रेट्रो करनी पड़ेगी ना आपको. टोटल के लिए हमें रेट्रो वापस आना पड़ेगा. तो आप वो बैग आते जाएंगे और रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस में आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ मूव करेंगे. तो ये कैसे आपका ऐड होगा? बेंजाइल ब्रोमाइड, एक सिंपल सा बेस डाल दें, पोटेशियम कार्बोनेट और एसीटोन या सोडियम हाइड्राइड यूज़ करें. तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट, सोडियम कार्बोनेट भी इट आल्सो वर्क्स हियर, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एंड यू कैन ऑलवेज रिमूव देम विद द हेल्प ऑफ प्लाडियम and charcoal with hydrogen. You can use any of these solvents.
Even you can use lithium and chloroform for this removal. ये प्रोटेक्टिव ग्रुप भी वैसा ही है ना पिछले जैसा, क्या फर्क है? There is a small difference. Methoxy group is there. So PMB, para-methoxy benzyl ether. It is available in the form of chloride, sodium hydride के साथ इस कंडीशन में, और you can get rid of with DDQ. अगर किसी के पास क्या कहते हैं, somebody doesn't feel comfortable to handle the palladium and charcoal and hydrogen gas because they are pyrophoric and they are explosive, they are dangerous to handle, then you can opt for this protective PMB. How you can remove it? With DDQ. This is a simple chemical available. आप just उसको ऐड करें, स्टर करें, and then you can get rid of this protective. ये फिर दूसरी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को तो रेजिस्टेंस शो करेगा DDQ के अलावा। हाँ, DDQ देखें और भी चलाता है, therefore क्या कहते हैं, डिपेंड करता है ना आपका नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है, डिपेंड्स ऑन योर नेक्स्ट सीक्वेंस. सो what is the difference between using general benzyl chloride and methoxy? देखें जो बेंजाइल ग्रुप है उसका जो रिमूवल है, you need the palladium and charcoal catalyst which is pyrophoric which catches the fire very easily. आपने उसमें सॉल्वेंट डाला होकर आग पकड़ लेते हैं, and then you need the hydrogen pressure. Hydrogen is also difficult to handle. People don't feel comfortable handling the hydrogen and palladium and charcoal. आप देखिए दो चीजें मिक्स करें, एक आग पकड़ता है और एक क्या है, धमाके से क्या कहते फटता है. तो some people don't feel comfortable with that one. Therefore, in the inventory we have different types of protecting groups. So this is the fifth protecting group. So अब तक हमने कौन कौन से protecting group देखे हैं? CMS, TBDMS, TBDPS, TIPS हो गया और बेंजाइल हो गया और PMB. बड़े आसान नाम है, हाँ इतना मुश्किल नहीं है. और ठीक है, अगर मैं लिखूं कि अल्कोहल का जो है ना कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, उसका जरा स्ट्रक्चर बना के लिखूं, उसको इंस्टॉल करने के लिए क्या कंडीशन है. मैंने अगर यहाँ पे लिखी है ना कंडीशन सोडियम हाइड्राइड, आपने सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दिया, पोटेशियम कार्बोनेट लिख दिया, दैट इज सफिशिएंट. एटलीस्ट यू हैव द कंसेप्ट दैट उसको इंस्टॉल करने के लिए जो क्लोराइड है उसको HCl की शक्ल में रिमूव करने के लिए कोई बेस चाहिए. तो प्रोटेक्टिंग एजेंट भी अंदाजा होना चाहिए. एसीटेट बड़ा मशहूर प्रोटेक्टिंग ग्रुप है. हाउ डू वी इंस्टॉल दिस ग्रुप? विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड. एसिटिक एनहाइड्राइड कोई सा भी बेस डाल दें, डीमैप डाल दें, पिरिडीन डाल दें, ट्राइथैलामीन कर लें और डाइबिया कर लें, ल्यूटिडीन कर लें. बहुत सारे ऑर्गेनिक बेसिस अवेलेबल हैं हस्पेजाइटा. तो क्या कर सकते हैं? एसिटाइल क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी यील्ड क्वांटिटेटिव नहीं आएगी. ये क्वांटिटेटिव यील्ड देता है आपको एसिटिक एनहाइड्राइड, बहुत अच्छी यील्ड देता है. लेकिन एसिटिक एनहाइड्राइड इज एन बैन आइटम, वी कैन नॉट बाय इट, स्पेशली फॉर पाकिस्तान इट्स नॉट अवेलेबल फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट. व्हाई? हीरोइन बनाने के लिए. कौन सी वाली हीरोइन? वो ये वाली नहीं, वो प्रवास करने वाली, जहाज बनाने वाली. तो वो जो है ना, इस वजह से पाकिस्तान में उसके ऊपर इंपोर्ट बैन है. सिमिलरली डजंट सेल एसिटिक एनहाइड्राइड टू पाकिस्तान, इंटरनेशनल सप्लाई डोंट सेल इट. अब एसिटाइल क्लोराइड से काम चलाना पड़ेगा. एसिटाइल क्लोराइड या एसिटाइल ब्रोमाइड, उसका यील्ड जो है क्वांटिटेटिव नहीं है, 70-80% यील्ड मिलेगी. देन यू हैव टू गो थ्रू द प्योरिफिकेशन स्टेप. प्योरिफिकेशन करेंगे और फिर कम्बरसम प्रोसेस प्योरिफिकेशन. बना लें, फिर वो आपसे वो छापा मारेंगे, क्या नाम है वो, नार्कोटिक्स वाले बना सकते हैं छोटे. सर एसिटिक एनहाइड्राइड ये ज्यादा इसलिए देता है कि उसकी बाय प्रोडक्ट जो एसिड बनता है वो भी बना के एसिड बना देता है. वो देखें आप एसिटिक एसिड है बाई प्रोडक्ट, तो वो तो आप रोटरी से उड़ा देंगे. जी सर, वो रिएक्ट करके सर वो भी एसिड बना सकते हैं अल्कोहल के साथ. दूसरा तो
मैं समझा नहीं आपका सवाल। सर अगर हम एसिटिक एनाहाइड यूज करेंगे, एक एसिटेट लग गया, दूसरा एसिटिक एसिड बन गया, वो भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके वो भी एसिड नहीं वो रिएक्ट नहीं करता। दैट डजंट रिएक्ट विद अल्कोहल अनलेस यू हैव ए catalyst. You have a catalyst. ठीक है, if you have a catalyst then you can। आप देखें पाकिस्तान में एसिटामिनोफेन कैसे बन रहा है, किन किन लोगों ने प्रैक्टिकल क्लास लिया वो जवाब दे सकते हैं। हाँ आपने लिया ना। हाँ तो एसिटामिनोफेन क्या चीज़ है? एसिटामिनोफेन अमाइनो एसिड एनाहाइड। हाँ कैसे बन रहा है? Acetylation of the nitrogen is the acetylation. ये एसिटाइलेशन से बन रहा है। ठीक है, देखें उसके जो रिएक्शन सीक्वेंसेस हैं, बेंजीन आप उसका नाइट्रेशन करते हैं, रिडक्शन, हाँ रिडक्शन सर, रिडक्शन नहीं, आप NO2 लगा लें। दूसरा सीक्वेंस है फिनोल वाला रास्ता। ठीक है, फिर आप इसका क्या करते हैं, नजर आ रहा है सबको? तेरा तो प्रश्न नहीं लगेगा। हाँ लगेगा। फिनोल की बात लगेगा। हाँ देखें आप इस तरह कर लें, दूसरा रूट ये है आपका, दूसरा रूट ये है। देखें ये स्टार्ट हमेशा बेंजीन से होता है। आप फिर इसका क्या करते हैं, आप लोगों ने ये वाला रूट किया है ना, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, इसका भी यही करते हैं। हाँ ये अगर रिडक्शन करें तो इसमें तब्दील हुआ, फिर एसिटाइलेशन करते हैं। हाँ हमने इससे किया है ना एसिटाइलेशन। ये क्या है, एसिटामिनोफेन जो आपके पैनाडॉल में यूज हो रहा है, कालपोल हो गया, आपका पैरासीटामोल हो गया। हाँ इतनी सारी, मेरा ख्याल 40-50 डिफरेंट नामों से मार्केट में अवेलेबल है ये। ठीक है, पाकिस्तान की एनुअल इसकी रिक्वायरमेंट है तकरीबन 8 से 10 हज़ार टन। ठीक है, हर साल। ये कैसे बन रहा है इस मुल्क में? एसिटिक एनहाइड्राइड तो इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान को सेल करने की इजाज़त नहीं है। इससे नहीं, एसिड क्लोराइड का रिएक्शन कभी भी क्वांटिटेटिव नहीं देता, इंडस्ट्रियली फिजिबल ही नहीं है वो रिएक्शन। एसिडिफिकेशन भी कर सकते हैं सर? हाँ एसिडिफिकेशन कर सकते हैं? नहीं, से भी लीड मिल सकते हैं। कराची में सिटी फार्मा, लाहौर में है सिटी फार्मा, वो इसको इंपोर्ट कर रहे हैं पाप को। ठीक है, ये क्या है आपका पैरामीनो फिनोल, ये इंपोर्ट करते हैं चाइना से और उसकी एसिटाइलेशन करते हैं एसिटिक एसिड से। और आयरन का कैटलिस्ट यूज करते हैं, आयरन का कैटलिस्ट यूज करते हैं और उससे आपकी एसिटाइलेशन होती है। और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है 15 से 20% है। यानी ये इंपोर्ट करके जब ये बनाते हैं देन दे सेल टू लॉट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो से गोलियां बनाते हैं, दे मेक द कैप्सूल्स। हाँ, और वो डिफरेंट नेम से पाकिस्तान में सेल करते हैं। पैनाडॉल कोई बेच रहा है, कोई उसको पैरासीटामोल के नाम से बेच रहा है, कोई उसे कार्बोल के नाम से बेच रहा है। हाँ, आप किसी फार्मासिस्ट के पास चले जाएं, वो एसिटामिनोफेन की 15-20 जो है ना उसके पास वैराइटीज रखी हुई है। विल हैव लॉट ऑफ वैराइटीज फॉर दिस ड्रग। पाकिस्तान में हालांकि क्लीन इससे होता है लेकिन ये इंपोर्ट करने की जरूरत है। कराची में साख फार्मा ये काम कर रही है, वो भी एसिटिक एसिड और आयरन के कैटलिस्ट से ये रिएक्शन कर रही है। आयरन कैटलिस्ट ओएच नहीं देगा रिडक्शन करने।
जैसे एल से भी रिड्यूस OH को मेरे ख्याल में करते हैं ना। नहीं, Reduction के वो लिए नहीं करेगा इस कंडीशन में। आप एसिटिक एसिड के साथ बॉइलिंग कंडीशन के ऊपर काम करते हैं, देयरफॉर वो एसिटिक एसिड सिर्फ यहाँ पे लगता है और देन यू सिंपली फिल्टर द कैटलिस्ट। लेकिन आप ये देखिए कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 15 से 20% है इसमें, सही है। अगर उन्होंने 1 करोड़ रुपए का ये इंपोर्ट किया है तो तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख रुपए में ये चीज़ बेचते हैं, ठीक है, सारा प्रोसेस करने के बाद। लेकिन ये चीज़ बनती कहाँ से? फ्रॉम वेयर वी गेट इट फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन आपके पेट्रोल में होता है 15-20%, जो डालते हैं ना गाड़ियों के अंदर, 15-20% पेट्रोल है। इट्स वेरी चीप स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है, इट इज वेरी चीप स्टार्टिंग मटेरियल। इससे जब आप ये बनाते हैं इसमें भी प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 15 से 20% है, ठीक है, 15 to 20% है। जब यहाँ से आप ये बनाते हैं इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपका तकरीबन 25 से 30% है। प्राइस डिफरेंस इफ यू वांट टू बाय दिस वन और दिस वन फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, चाइनीज सप्लाई कर रहे हैं, और इससे 300 to 400% है, बिकॉज इसको रिड्यूस करने के लिए जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है, द कैटलिस्ट विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ दिस, दैट इज ट्रेड सीक्रेट। That knowledge is only held by either China or India or Germany. जर्मनी में BASF, ठीक है, BASF बड़ी मशहूर कंपनी है। तो यानी अगर आप ये लेना चाहें तो ये अगर आपको लेट्स से $1 पर 100 ग्राम मिल रहा है तो ये आपको कितने का मिलेगा? $300, ठीक है। देखने में तो सिंपल रिएक्शन लगता है, यू कैन यूज प्लाडियम ऑन चारकोल वेरी इजीली, यू कैन रिड्यूस इट, दैट्स नॉट पॉसिबल। Palladium is highly toxic metal. After the catalytic reaction, what you have to do? You have to remove the palladium, but the traces of palladium are left in the API, active pharmaceutical ingredient, and it can provoke cancer. Therefore, use of palladium for the manufacture of API is not feasible. You can use rhodium, you can use ruthenium, they are not feasible. So we don't know exactly what is the nature of the catalyst which is being used for this reduction. It is quite expensive. So हम पाकिस्तान में सिर्फ ये कर रहे हैं, और वो भी चंद एक फार्मा है, सिटी फार्मा लाहौर में है और साक फार्मा आपके बिन कासिम पे है, SAAKH नाम है उसका। तो लेकिन ये यहाँ से चलता है ना, तो वो नॉलेज नहीं है ना, एक्सपीरियंस नहीं है। नो आपका क्या कहते हैं ICP-MS जो है ना, PPE लेवल पे भी पलाडियम की कंसंट्रेशन बता देता है, यू कैन नॉट रिमूव इट। पलाडियम कैटलिस्ट रिमूव करना का आसान नहीं है, ठीक है। आप फिल्टर कर लें, जो भी कर लें हेटेरोजेनस कैटलिस्ट यूज करके, स्टिल द ट्रेसेस आर देयर, दैट्स नॉट। तो देखें, बात चली थी इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप से। एसीटेट जो है ना, एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज फॉर अल्कोहल। यहाँ पे हमने एसीटेट कहाँ पे लगाया है? अमीन के ऊपर। और आपका जो है ना ये दिस प्रोटेक्टिंग ग्रुप can be easily installed with acetic anhydride. Acetic anhydride gives the reaction quantitatively. Those people who have done the practical, we did the installation of acetyl group on paranitro-aniline. आपने बस डाला, हिलाया, थोड़ा सा हीट किया, लाड़ा प्रोडक्ट क्वांटिटेटिवली। इतनी सारी प्रोडक्ट देख के दिल बाव बाव हो जाता है। तो इस जगह पे OHB सर बेंजीन पे, तो हाँ, प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है, वो नहीं लगेगा। वो अगर आपको यहाँ पे बेस डालना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू विल यूज एन ऑर्गेनिक बेस, तो फिर आपने एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया ना, वो इधर भी आके लग जाएगा। ऑर्गेनिक बेस आप डाल के देखें, ठीक है।
तो अदरवाइज अगर आपने ऑर्गेनिक बेस नहीं डाला हुआ तो वो सिर्फ यहाँ पे लगेगा। वाई? बिकॉज ये अमीन एज ए बेस काम करेगा ना, ठीक है, देन इट विल रिएक्ट किया। एसिटाइल क्लोराइड यूज किया जा सकता है बट इट विल नेवर गिव यू अ क्वांटिटेटिव यील्ड, दिस इज द प्रॉब्लम, इट विल डू अ लॉट ऑफ साइड रिएक्शंस। मोनो एसिटाइलेशन, डाई एसिटाइलेशन, थोड़ी सी प्रोडक्ट बनती है डाई एसिटाइलेशन की। और फिर इन इंडस्ट्रियल सेटिंग प्यूरिफिकेशन इज नेवर फिजिबल। Therefore, लैब में आप मल्टी स्टेप सिंथेसिस के बाद प्रोटोकॉल प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं, फिर पायलट स्केल के ऊपर केमिकल इंजीनियर वो मेथड फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि जिसमें हमें प्यूरिफिकेशन ना करनी पड़े, जब सिंपल एक्सट्रैक्शन या फिल्ट्रेशन या वॉशिंग, वो क्या है केमिकल इंजीनियर से काम होता है जब वो प्लांट डिजाइन कर रहे होते हैं। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमारे पास एसिटाइल प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, एंड देन benzoate are also used as a protecting group, so benzyl chloride you will use. Benzyl chloride, if there is a chloride, then of course you need an organic base and organic solvent to shift the equilibrium towards the right direction of the equation. And फिर ये जो protecting group है, this is an ester. So ester you can get rid of by acid hydrolysis or base hydrolysis only. सर जैसे कि अब ये वाला प्रोटेक्टिंग ग्रुप है या लास्ट स्टेप वाला प्रोटेक्टिंग ग्रुप था, इसकी इंस्टॉलेशन के लिए भी हम बेस यूज करते हैं और इसकी डी प्रोटेक्शन के लिए भी बेस यूज करते हैं। उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन कम है, सही है। तो आप स्ट्रांग बेस यूज करेंगे, KOH इज वेरी स्ट्रांग बेस कंपेयर टू आपका ये ऑर्गेनिक बेस है। कैटालिक अमाउंट भी यूज करते हैं एज ए बेस, वो जो उसकी कंसंट्रेशन वैसे ज्यादा होती है। हाँ, KOH जो है आप 1 मोलर यूज करते हैं, 2 मोलर यूज करते हैं, KOH बड़ा स्ट्रांग बेस है। लास्ट में हम लिथियम हाइड्रोक्साइड, यूरोप अमेरिका में जो लोग मर जाते हैं ना, उनके क्या करते हैं, KOH के सोल्यूशन में वो बॉडी डाल देते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, जल नहीं जाता, सब कुछ खत्म हो जाता है, खाली हड्डियाँ रह जाती हैं, ठीक है। फिर वो हड्डियाँ क्या करके इसके डब्बे में डाल के दे देते हैं, लो इसको जाके खत्म कर दो। KOH is very strong base, so be careful, never handle it with the bare hands, आपने ग्लव पहने होने चाहिए, नहीं तो ये जो हाथ है ना, हाथ ये सारे क्या हो जाएंगे, खुरदरे हो जाएंगे। जो क्रीमें व्रीमें लगाते रहते हैं ना हाथ के ऊपर, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। Therefore be careful whenever you are handling calcium hydroxide or sodium hydroxide, they are strong base, they can destroy your skin and or eyes also. So you have to wear the goggles in the lab. तो देखें ईस्टर है, ईस्टर मान को तोड़ने के लिए आप स्ट्रांग बेस यूज कर रहे हैं या स्ट्रांग एसिड यूज कर रहे हैं, यू कैन हाइड्रोलाइज इट, थोड़ा सा हीट कर दें तो टूट जाएगा, ठीक है, एंड यू विल गेट योर अल्कोहल बैक क्वांटिटेटिवली। देन मॉम, मिथॉक्सी मिथाइल एसिटल, ये भी आप यूज़ करते हैं, ये भी क्लोराइड की शक्ल में अवेलेबल है, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। ऑफ कोर्स इधर क्लोराइड लगा हुआ था, अब चूंकि क्लोराइड लगा हुआ था तो आप ऑर्गेनिक बेस यूज़ करके क्या करेंगे, HCl करके रिमूव करेंगे और ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा आपके अल्कोहल के ऊपर, और देन यू कैन यूज़ एनी ऑफ दिस डी प्रोटेक्शन स्कीम टू गेट रिड ऑफ दिस प्रोटेक्टिंग ग्रुप। फिर इससे मिलता जुलता MEM है, 2-methoxy इथॉक्सी मिथाइल एसिटल, ये भी आपके पास क्लोराइड की शक्ल में अवेलेबल है। ऑर्गेनिक बेस यूज़ करें, कोई सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ कर लें, DCM, क्लोरोफॉर्म। तो एथेनॉल यूज़ करेंगे यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट, सोच के बताएं, क्या हम सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं एथेनॉल एज ए सॉल्वेंट हियर DCM की बजाय? आपका जो है ना स्टार्टिंग मटेरियल DCM में डिजॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन एथेनॉल में बड़ा अच्छा डिजॉल्व हो रहा है। नहीं कर सकते सर, नहीं, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कर सकते हैं। कौन कौन है जो कहते हैं कि हम अल्कोहल एथेनॉल यूज कर सकते हैं इस काम के लिए, मेथनॉल या प्रोपेनॉल? व्हाई? वो इटसेल्फ अल्कोहल है, प्रोटेक्टिव ग्रुप जो है ना उसके साथ ही बिजी हो जाएगा, ठीक है, आपको यील्ड ही नहीं मिलेगी।
हाँ ये बेचारा रह जाएगा क्योंकि सॉल्वेंट का बहुत सारा यूज करते हैं ना, जी सर। ठीक है। सॉल्वेंट इज यूज इन एक्सेस, आपका स्टार्टिंग मटेरियल वो रह जाएगा। प्रोटेक्टिंग ग्रुप उधर लगने की बजाय आपके हाँ एथेनॉल के ऊपर जाके लगेगा। हाँ THP टेट्राहाइड्रोपेरानॉल एसिटल, ठीक है। तो ये टेट्राहाइड्रोपाइरेन की शक्ल में पाया जाता है और क्या कहते हैं यहाँ डबल बॉन्ड होता है। तो ये भी इजीली आप पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड और इस तरह की कोई एसिड यूज़ कर लें या एक ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड का डाल लें। हाँ तो दिस रिएक्शन कैन इजीली, दिस प्रोटेक्टिंग ग्रुप कैन इजीली इंस्टॉल ऑन एन अल्कोहल। और फिर रिमूवल के लिए भी आप PTS से यूज़ करेंगे लेकिन कंसंट्रेशन ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। ये आप कैटालाइटिक अमाउंट में यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप एसिड को इन एक्सेस। केमिस्ट्री का भी तो रोल हो सकता है ना, कार्ल सेंटर तो है लेकिन देखें हम फिर स्पेसिफिकली बोल लेते होंगे कि R या S ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसकी कोई यील्ड भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, हमारा कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है इसके साथ, ठीक है। हमने लैब में से 12 यूज़ किया है लेकिन यील्ड डजंट गिव मी गुड यील्ड 50-60%। लिटरेचर में भी कोई ज़्यादा अच्छी यील्ड नहीं है इसकी। और ये भी पता नहीं किस केयर स्टेट में वो हमें मिलती हो, हाँ कंफर्मेशन मिल वो उस हिसाब से भी डिपेंड करता है। आपके पास वो एनर्शियल प्योर है तो ये जब लगेगा तो डायस्टियोमर का मिक्सचर मिलेगा। डायस्टियोमर हाँ मिल सकता है, ये SN2 कोई हमें रिएक्शन मिल जाए वो उसमें तो प्रोबेबली SN2। लेकिन बाद में पता होना चाहिए कि ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी अवेलेबल है OH के लिए। फिर मिथाइल ईथर्स, मिथाइल ईथर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और डी प्रोटेक्शन आपका TMS क्लोराइड यूज़ कर लें, हाँ TMS आयोडाइड यूज़ कर लें। और ये जो है ना आपका कॉकटेल है डी प्रोटेक्शन का। अब आ जाए कि कल मैं बात कर रहा था कि जब आप एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ कर रहे हैं और आप एक सीक्वेंस डिज़ाइन कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको पता होना चाहिए कि अंडर दीज कंडीशंस वो स्टेबल है, हाँ, और अंडर दीज कंडीशंस ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज नॉट स्टेबल। लेकिन इस दिस कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि यू कैन गेट रीड ऑफ दिस प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्वांटिटेटिवली, इट्स नॉट। हाँ ये जो ना पार्शियली रिमूव हो जाता है, यू गेट एट दैट मिक्सचर इन योर फ्लास्क। सो आप pH 1 से कम यानी स्ट्रांग एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं दे सकते इसको और 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट नहीं कर सकते, ये पार्शियली रिमूव हो जाता है। सिमिलरली हाइड्रोजन और निकल के साथ जो है ये नहीं ठहरता, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन रोडियम अगर आप यूज़ करने जा रहे हैं, जिंक HCl यूज़ करने जा रहे हैं, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग है, OSO4 ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, हाँ एक्सट्रीमली डेंजरस केमिकल, और ये जो है ये इन सब के साथ जो है ये स्टेबल रहेगा। बेंजाइल ईथर्स ये है, ठीक है। इसमें आयोडीन के अगेंस्ट स्टेबल है लेकिन बाकियों के अगेंस्ट ये पार्शियली स्टेबल है, हाँ। सोडियम अमोनिया बेर्च रिडक्शन कंडीशंस, ये बेर्च रिडक्शन कंडीशन है ना सोडियम और अमोनिया, हाँ। अगर आपको अगले किसी स्टेप के ऊपर कोई डाइईन प्रोड्यूस करना है, एरोमेटिक डाइईन, हाँ, तो फिर ये स्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि इटसेल्फ इसका फिर डाइईन बनेगा, ये करेगा नहीं। इसके बाद दीज प्रोटेक्टिव ग्रुप्स आपका ईस्टर बड़ा नाजुक सा प्रोटेक्टिव ग्रुप है, आसानी से बहुत सारी कंडीशंस पे चला जाता है, हाँ। लिथियम डाई एमाइड, हाँ डाई आइसोप्रोपाइल वन भी बहुत है, क्या है pH 1 भी मोर देन इनफ है कि वो लेवल करने के लिए। तो लेकिन हीटिंग के साथ बाज़ जगह तो ये सिंपल 1 या 2 नॉर्मल HCl के साथ निकल जाता है, लेकिन बाज़ जगह हमने देखा है लैब में देयर आर मैनी इंस्टेंसेस यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ एन एसिटाइल ग्रुप, we have to heat it extensively। 4 या 5 नॉर्मल KOH के साथ रिमूव होता है। It depends on the electronics of a molecule। ऐसी कंडीशन के लिए बेस्ट है कि बेस जो है ना लाजमी है 7 से pH ऊपर ही होना चाहिए। And then एसिटिक एसिड ईस्टर्स, ये आपकी क्या कहते हैं
अनस्टेबिलिटी की कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस पे ये स्टेबल है और इनके ऊपर पार्शियली स्टेबल। फिर टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर्स हाईली स्टेबल प्रोटेक्टिव ग्रुप है, इसके साथ जाता है। लेकिन अभी लैब में हमने फिगर आउट किया कि ये जो है आयोडीन के साथ ही जाता है, ठीक है। अगर आप आयोडीन के कुछ क्रिस्टल्स डालें तो यू कैन इजीली गेट रिड ऑफ दिस प्रोटेक्टिव ग्रुप। तो लेकिन ये जो है ना सम इन अदर कंडीशंस दिस प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज हाईली स्टेबल। ये आप लोगों को स्लाइड मिल गई थी क्लास वाली, सुबह मिल गई, सही। तो ये आप लोगों को मिल जाएंगी, ये समझने की कोशिश करें। वाटर में इस पीएच तक ये स्टेबल है। बेसिस में आप आ जाएं, हाँ, न्यूक्लियोफाइल्स में यहाँ स्टेबल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स ये जो है इनके अगेंस्ट ये स्टेबल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जितने भी हैं इनके अगेंस्ट भी ये स्टेबल है, ठीक है। ये आयोडीन वाली जो ना बात मुझे हजम नहीं हुई, लेकिन लिखा हुआ है ये आमतौर पर आयोडीन से निकल जाता है, ठीक है। अभी तक हमने 2-3 एग्जांपल्स देखी हैं जिसमें हमने ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप इंस्टॉल किया था और सिंपल फ्यू आयोडीन क्रिस्टल डालने से we were able to get rid of this protecting group। और आगे ये क्या है, TBD क्या है, NS। जिंक HCl के अगेंस्ट अनस्टेबल है इन pH कंडीशंस पर भी ये, चाहे रूम टेम्परेचर है चाहे बॉइलिंग टेम्परेचर है, हाँ, एसिडिक एनवायरनमेंट में इट डजंट स्टे। 4 pH पे भी रूम टेम्परेचर पे पार्शियली स्टेबल है। पार्शियली स्टेबल है, यू विल नॉट गो फॉर इट। व्हाई? आपको रिएक्शन इससे मिल रहा है और फिर क्या कहते हैं, यू विल लूज द यील्ड। बेसिक कंडीशन चाहिए। pH 9 पे स्टेबल है, लेकिन pH 12 पे और फिर उससे अबव जो है स्ट्रॉन्ग बेसिक एनवायरनमेंट में भी ये स्टेबल नहीं है। न्यूट्रल के करीब एनवायरनमेंट चाहिए। हाँ, न्यूट्रल के करीब मोस्टली आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज करेंगे। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट्स के अगेंस्ट स्टेबल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, हाँ, इलेक्ट्रोफाइल्स, ये सब जो है यहाँ पर काम करेगा। तो देखें, ये रट्टा लगाने वाली चीज़ें नहीं है। इफ यू अंडरस्टैंड इट देन, हाँ, जब आप एक रिएक्शन सीक्वेंस डिजाइन कर रहे हैं देन यू विल कंसल्ट विद दिस इंफॉर्मेशन। और फिर जब आप एक रिएक्शन सीक्वेंस डिजाइन कर रहे हैं तो ये आपको एक रेफरेंस है। मैकेनिज्म में क्या होता होगा सर, जब pH 12 के ऊपर देते हैं, जैसे जाहिर सी बात है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट भी होगा। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट की पॉसिबिलिटी जैसे मेथल ग्रुप है, वहां से होकर जो फिनोऑक्साइड के फॉर्म में हमारे वो जो ना लीविंग ग्रुप बन जाएगा, फिर भी तो लीविंग ग्रुप एक फिनोऑक्साइड दैट इज आल्सो अ रिएक्टिव। हाँ, लेकिन देखें प्रैक्टिकली लैब में देखें, ये लैब ऑब्जर्वेशंस हैं मोस्टली। Theoretically, so you can explain a lot of things, and you cannot explain many things. लाजमी वो जैसे इस बात है रिटन है तो एक्सप्लेन में हाँ, एक्सप्लेनेशन लिटरेचर में जाके ढूंढनी पड़ेगी इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये सब जो है ना आपकी लैब ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्वेशन है वो समराइज हुई है यहाँ पर। आपका pH भी ठीक है। जस्ट कीप इन माइंड इसकी कोई यील्ड अच्छी नहीं आती। अब तक हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमें हर बार जो है इसकी यील्ड 50-60% से ज़्यादा नहीं मिली जब भी मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन इस प्रोटेक्टिव ग्रुप्स के साथ किए हैं। तो ये आपके हाँ वो कंडीशंस हैं जिसमें प्रोटेक्टिव ग्रुप इज लेबाइल, बाकी कंडीशंस में ये स्टेबल है। अगर आप इफ यू विल सी, हाँ, basic environment में it is stable, for nucleophiles it is stable, for most of the reducing agents it is stable, oxidation में यहाँ पे इसके अगेंस्ट जो है अनस्टेबल है। सर एमपीएस वगैरह भी जो है ना लेबाइल टैग करवाएंगे उसको, एमपीएस एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड कि वो भी लेबाइल टैग होती है। पीएचपी प्रोटेक्शन कॉमन कंडीशंस ये हमने पीछे भी देख लिया हल्का फुल्का। हाँ,
तो ये कंडीशन आप लगाएंगे तो अल्कोहल पे ये TsP ग्रुप इस तरह लग जाएगा, ठीक है। एक पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, ये मैकेनिज्म है उसका, ठीक है। तो ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करेगा और ये यहाँ पर, और पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इस तरह होगी और फिर ये केटाइन है और देन यू गेट दिस थिंग। अल्कोहल जो है उसके जो लोअर पेयर है यहाँ पे अब पिरिडीनियम पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड के साथ भी हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं कैटालाइटिक अमाउंट के साथ। तो उसका मैकेनिज्म है प्रोटेक्शन, फिर आपको पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड यूज करना है बट नॉट इन कैटालाइटिक अमाउंट, इन लार्ज अमाउंट, देन यू कैन गेट रिड ऑफ दिस। और जब ये यू कैन गेट रिड ऑफ दिस और फिर रोटरी से जब आप इवेपोरेशन करते हैं तो ये आप साल्ट के साथ दूसरी साइड हो जाता है। ये बेसिक कंडीशन है ना कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप इजीली आप उसे रिमूव भी कर सकें और फिर आप इजीली उसे क्या कहते हैं एलिमिनेट भी कर सकें। जो उसका मैकेनिज्म है, ठीक है, मैकेनिज्म जस्ट फॉर रेफरेंस, ये ना हो कि आप लोग रट्टे लगाने बैठे हुए हैं। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो भी इसे रिमूव कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी कर सकते हैं इसे। PMB प्रोटेक्शन ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। क्लोराइड आप यूज कर लें इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और DDQ इज यूज फॉर इट्स डिप्रोटेक्शन। ये उसका मैकेनिज्म है। ये आपका DDQ है, एक क्यूनोन है, इट्स एन oxidizing agent. It also works as oxidizing agent. So when you are designing a scheme, so be careful about the other properties of this molecule. Phenols, ये भी तो अल्कोहल्स है ना। So phenols are aromatic compounds, बड़े काम की चीज है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में, टोटल सिंथेसिस में ये एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज होता है। यहाँ भी देखें we use the phenol. Phenol was generated from benzene and उससे फर्दर केमिस्ट्री हुई है आपके यहाँ तक एसिटामिनोफेन तक। सो फिनोल का जनरल स्ट्रक्चर है, what is the importance? Phenolic groups can be easily protected due to aromatic ring, methyl ether, benzyl ether, silyl ether, एलिफेटिक अल्कोहल्स की निस्बत या सेकेंडरी अल्कोहल्स की निस्बत फिनोल की जो है प्रोटेक्शन इज रिलेटिवली इजी। इस बिल्डिंग ब्लॉक फॉर CC एंड C हेटेरोएटम बॉन्ड फॉर्मेशन। ये देखें, ये कौन सा रिएक्शन है, तो बता सकता है कौन सा रिएक्शन है? सुजुकी नहीं है, CC बॉन्ड कपलिंग तो नहीं हुई, ये वाला नंबर 2। अच्छा, फिनोल जो है प्रीकर्सर फॉर हाइड्रोक्साइड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। नेचुरल प्रोडक्शन से ये सोच के बताना है, कल ये बताना है आप लोगों ने कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस के लिए भी आपका फिनोल एन इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर है। ये सुजुकी नहीं है, सुजुकी में CC बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। आप ये बोरोनिक एसिड देख के परेशान हो गए ना कि यहाँ बोरोनिक एसिड है और ये प्लाटियम भी नजर आ रहा है और ब्रोमाइड भी नजर आ रहा है। हाँ है तो वैसा ही, लेकिन आगे क्या है, फिनोल बना है। अच्छा, मेडिसिनल केमिस्ट्री एप्लीकेशन में भी फिनोल की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन फिनोल की स्मेल कोई अच्छी नहीं होती। जिन लोगों ने प्रैक्टिकल किए हैं हाँ, उनने हमारी लैब में बड़ी स्मेल फैलाई है हाँ फिनोल की। तो ये करने गए और फिर हाँ ऐसे ही है ना, अगले 1-2 दिन बच्चे तंग हो रहे थे। तो फिनोल के साथ आप जब भी काम करें, यू हैव टू वर्क अंडर द फ्यूम हुड।
कार्सिनोजेनिक, थोड़ा सा कार्सिनोजेनिक। बेंजीन भी है बहुत ज़्यादा। पॉलीमर एंड मटेरियल साइंस में भी फिनोल जो है आपका एक्सटेंसिवली यूज है। Therefore, it is important to know production strategies for phenol, slightly different. आपका TBS या TBDMS can be easily installed. कोई ऑर्गेनिक बेस यूज कर लें और रिमूवल कंडीशन भी सेम है। टिप्स भी you can tips in the form of chloride. टिप्स आपका ट्रिपलेट की शक्ल में अवेलेबल है। मिथाइल ईथर्स, ये उसकी प्रोटेक्शन कंडीशंस हैं एंड डी प्रोटेक्शन कंडीशंस इससे है। PbR3 हो गया, पिरिडीन HCl हो गया, पिरिडीनियम HCl हो गया और ये बाकी मटेरियल है। मिथाइल ईथर बना कहाँ से सर? स्टार्टिंग मटेरियल बेंजीन है या कुछ और? यहाँ ये जो है आपका मेथनॉल, मेथनॉल से। सही है। आप स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करते हैं तो देन इट कैन इजीली प्रोटेक्ट। मिथाइल क्लोराइड भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मिथाइल क्लोराइड इजीली नॉट अवेलेबल क्योंकि मुख्तलिफ जो है ना नशा और ड्रग्स के बनाने में इस्तेमाल है, प्रीकर्सर है, इट्स नॉट इजीली अवेलेबल। मिथाइल आयोडाइड भी यूज हुआ है। मिथाइल आयोडाइड भी यूज हो सकता है। फिनोल के लिए ये उसकी स्टेबिलिटी कंडीशंस हैं TBD-MS की, ठीक है, और इन कंडीशंस पे दिस प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज अनस्टेबल। स्ट्रॉन्ग बेसिक एनवायरनमेंट पे अनस्टेबल है until pH 9 दिस प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज स्टेबल फॉर फिनोल। न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स मोस्टली जो है they don't affect it। आयोडाइड में स्टेबिलिटी शो हाँ, आयोडाइड में स्टेबल है ये, सही है, ये ओके। ये स्टेबिलिटी चार्ट है। TMS जो है इसकी स्टेबिलिटी अगर 1 है तो ट्राई इथाइल सिलाइल 60 टाइम्स मोर स्टेबल है, हाँ, और इन एसिड्स, और 10 to 100 times more stable in bases। TBDMS 20,000 times more stable, ठीक है। टिप्स इट्स इवन मोर स्टेबल। तो ये सर स्टेबलाइज करता है। हाँ, उसके ऊपर जो क्या कहते हैं सिलाई के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप। सो मिथाइल ईथर्स के लिए डिफरेंट क्या कहते हैं प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन कंडीशंस। प्रोटेक्शन ऑफ विलियमसन एथरिफिकेशन। विलियमसन एथरिफिकेशन क्या है? अल्काइल हैलाइड प्लस तो सोडियम हाइड्राइड जो है ना पोटेशियम कार्बोनेट चल जाएगा, सेफ है। सोडियम हाइड्राइड थोड़ा सा अगर आपके पास आ गया है विदाउट मिनरल ऑयल वाला सोडियम हाइड्राइड तो वो तो फौरन आग पकड़ लेगा। आपने जब ढक्कन खोला मॉइस्चर से वो आग पकड़ लेते हैं। अगर तो मिनरल ऑयल 60% मिनरल ऑयल वाला सोडियम हाइड्राइड आपके पास है दैट इज इजी टू हैंडल, बट द प्रॉब्लम इज दैट आपको मिनरल ऑयल रिमूव करना है, इम्प्योरिटीज आपके पास है रिएक्शन हिस्ट्री में। सो पोटेशियम कार्बोनेट इज अ गुड चॉइस। मोस्ट ऑफ द केसेस विलियमसन रिएक्शन जो है ना पोटेशियम कार्बोनेट से हो जाता है। तो टिपिकल हीट मोर देन 90%, 2 से 12 घंटे। हाँ, तो आपका जो मिथाइल ईथर है वो विलियमसन रिएक्शन से इजीली इंस्टॉल हो जाता है। डिप्रोडक्शन उसके लिए आपको HBr गैस या 48% एक्वस HBr रिफ्लक्स करेंगे, 70 से 90% यील्ड है, या BBR3 आप यूज़ करें मिथाइल ईथर को रिमूव करने के लिए। ये उसकी क्या है कॉमन रिएक्शन टाइप। बेंजाइल ईथर सेम, बेंजाइल ब्रोमाइड यूज़ करें, पोटेशियम कार्बोनेट यूज़ कर लें या सोडियम हाइड्राइड यूज़ कर लें। हाँ, तो
सोडियम हाइड्राइड ज़्यादा स्ट्रांग है, कोशिश करें कि पहले माइल्ड से सोडियम कार्बोनेट से स्टार्ट करें रिएक्शन। अगर सोडियम कार्बोनेट से नहीं हो रहा तो पोटेशियम कार्बोनेट पे चले जाएं। उससे यील्ड अच्छी नहीं आ रही तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कर लें। उससे यील्ड अच्छी नहीं आ रही तो थोड़ा और स्ट्रांग बेस यूज़ कर लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, उससे यील्ड अच्छी नहीं आ रही तो फिर आप सोडियम हाइड्राइड डायरेक्ट हथौड़ा ना मारे ना ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। हाँ, ओके, हमने जो है ना डायरेक्ट सोडियम हाइड्राइड से स्टार्ट लेना है। तो डीप्रोडक्शन बेंजाइल ईथर हमेशा क्या है, हाइड्रोजिनॉलिसिस से या एक स्ट्रांग किस्म का BCl3, ये वो रिएजेंट्स है जो अवेलेबल ही नहीं है लैब्स में, ठीक है। तो इजी जो है वो आपका हाइड्रोजन 10% प्लाडियम अच्छा, और ये भी बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन 95%। सिलाइलेशन, ये उसकी कंडीशंस हैं। यील्ड इसकी 1 से 4 घंटे में, विद इन 1 आवर आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है आमतौर पर, ठीक है। सेफ साइड पे रहने के लिए 4 आवर्स लिखे हुए हैं। ये वेरी कॉमन एंड हाई यील्डिंग प्रोसीजर, लेकिन इनर्ट एटमॉस्फेयर में ये रिएक्शन होगा, ठीक है। हाँ, रिमूव करने के लिए आपको फ्लोराइड चाहिए, TBAF चाहिए, हाँ, या 1 मोलर HCl चाहिए, या आयरन ट्रिफ्लेट चाहिए इसको रिमूव करने के लिए। तो ये समराइज किया हुआ है डिफरेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, बेंजाइल ईथर, मिथॉक्सी मिथाइल एसिटल, TBS, मेसाइलेशन मेसाइल ग्रुप, और मिथाइलेशन। ये उसकी प्रोटेक्शन कंडीशंस हैं, ये उसकी these are deprotection conditions, these are the protection condition and these are deprotection conditions। तो इस एक पेज के ऊपर फिनोल के डिफरेंट प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज समराइज कर। मैकेनिज्म सेम लाइक वी सॉ बिफोर। हाँ, ये जो है ना आपकी रिएक्शन कंडीशंस हैं समराइज की हुई हैं, या आप ये यूज़ कर लेंगे, ये यूज़ कर लें, ठीक है। ये वाला बेस यूज़ कर लें, ट्राइथैलामीन यूज़ कर लें यहाँ पर, या आप DMAC यूज़ कर लें। वो तो आप ट्राई करेंगे ना, बेस तो हल्का हल्का वेरी करके देखेंगे, बास सही से अच्छी यील्ड देते हैं, बास पर यील्ड नहीं आती। तो लैब में जो है जितना काम करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट होंगे। सर ट्रिपलेट और क्लोराइड के लिए हम डिफरेंट कंडीशन यूज करेंगे। हाँ, आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये वाला बेस भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका इमिडाजोल के साथ उसका क्या है, किस तरीके से ये काम करेगा, और एट द एंड आपका ये अल्कोहल इसके ऊपर आके लगेगा, और इस तरीके से आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप TBD MS जो है इस पर लग गया अल्कोहल। डीप्रोटेक्शन मैकेनिज्म ये है। तो आपने एसिडिक एनवायरनमेंट दिया है और उसके नतीजे में आपका ये बन गया, और ये आपका TMSOH हाईली वोलाटाइल मॉलिक्यूल है। सिंपल रोटरी इवेपोरेशन के जरिए यू कैन गेट रिड ऑफ दिस वन एंड गेट योर प्योर प्रोडक्ट। उसका मैकेनिज्म है क्लोराइड आयन के जरिए TBAR, ठीक है। डीप्रोटेक्शन मैकेनिज्म है उसका, ठीक है। फ्लोराइड आयन जो है किस तरीके से आपके TBD MS को रिमूव करता है, और एट द एंड यू गेट अल्कोहल। और ये मॉलिक्यूल भी वोलेटाइल है। सिंपल रोटरी इवेपोरेशन से यू कैन गेट रिड ऑफ दिस साइड प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? हैरान और परेशान बैठे हैं सब लोग। तो अल्कोहल के एटलीस्ट अब आप लोग को ये तो पता चल गया ना अल्कोहल के प्रोटेक्शन ग्रुप्स कौन से। मोस्टली व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस यू विल यूज, ऑर्गेनिक बेस या इनऑर्गेनिक बेस। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पीसी यूज करना है, बस कोई अल्कोहल नहीं यूज करना, मेथनॉल या एथनॉल नहीं यूज करना। हाँ, एज ए सॉल्वेंट just be careful because you are protecting the OH on your substrate. So you cannot use an alcohol as a solvent. तो कौन कौन से प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स हमने अब तक देखे हैं आज अल्कोहल के? डिफरेंट टाइप नाम बड़े अच्छे अच्छे आसान से। हाँ, TMS हो गया,
TPTMS हो गया, TPTPS हो गया, टिप्स हो गया, और माम हो गया, मीम हो गया, और बेंजाइल ईथर हो गया, मिथाइल ईथर हो गया, और एसिटाइल, हाँ वो जो क्या कहते हैं ईस्टर टाइप प्रोटेक्टिव ग्रुप्स हो गए, एसिटाइल हो गया, और बेंजाइल हो गया, हाँ, और बेंजाइल पे पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है ना PNB, पैरामिथॉक्सी बेंजाइल, एटलीस्ट पहले तो नहीं सुना था ना प्रोटेक्टिव ग्रुप्स का। और लेकिन अल्कोहल को अवॉइड करें, सही है। अल्कोहल आप यूज करेंगे तो आपका प्रोटेक्टिव ग्रुप जो है वो उधर कंज्यूम होने की बजाय सबस्ट्रेट को प्रोटेक्ट करने की बजाय आपके अल्कोहल को प्रोटेक्ट करने बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। मोस्ट क्या कहते हैं, मोस्टली जितने भी प्रोटेक्टिव ग्रुप्स हैं क्लोराइड की शक्ल में अवेलेबल हैं। क्लोराइड की शक्ल में अवेलेबल हैं, देन यू हैव टू पुट a base in the flask, push the reaction towards the product, towards the right side according to Le Chatelier principle, और remove करने के लिए फिर there are different conditions। ठीक है, जो लोग यूएसपी लेके आए हैं वो यहाँ से काफी कर सकते हैं। इसमें से क्या स्टाफ है